of contiguous or related data items that share a common name. But देखिए group of related data items है and they will share a common name. जैसे for example मैंने बोला student 100. So there are how many students? There are 100 students. So those 100 students are sharing a common name, that is an array student. For instance, we can define an array named salary. एक array का नाम salary भी रख सकते हैं. What it will represent? It will represent a set of salaries of a group of employees. जैसा salary अगर 100 बोल दिया तो कितने employees की salary represent करेगा वो array? 100 employees की. Yes or no? Yes sir. है ना. यहाँ पे क्या लिखा है? salary 10. ठीक है. salary 10 लिखा है मतलब it is represent the salary of 10. While the complete set of values referred to as an array, the individual values are called elements. आपको पता है कि complete जैसा आपने बोला salary 10 या student 100 उसको मिला के क्या बोलते हैं? That what is it precisely called as? It is called as an array. Yes or no? क्या बोलते हैं उसको? Yes sir. Array. It is yes. और उसके एक एक एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उसके एक एक जो इंडिविजुअल है वैल्यूज को उन लोगों को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स. Yes or no? Yes. An array can be of any variable type, float, string, integer, कोई भी boolean भी रह सकता है. So arrays can be of any type, है ना. So the ability to use a single name to represent a collection of items and to refer to any item by specifying the item number enables us to develop concise and efficient programs. क्या होगा कि देखिए एक सिंगल नेम को यूज कर रहे हैं अपन कलेक्शन ऑफ आइटम्स को रेफर करने के लिए, है ना. कलेक्शन ऑफ आइटम्स जैसे कि हमें 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स चाहिए तो मार्क्स 10 लिख दिया तो हो गया क्या? सिंगल मार्क्स एक वेरिएबल है और उसको यूज करके वी आर रिप्रेजेंटिंग 10 एलिमेंट्स ऑफ मार्क्स. ठीक है. सो नाउ फर्स्ट विल सी व्हाट इज वन डायमेंशनल एरे. अब सिंगल डायमेंशनल होता क्या है? अ लिस्ट ऑफ आइटम्स कैन बी गिवन. अब dimensional array. So first of all, the subscript can also begin with अगर मुझे एक चीज बताइए, अगर कोई array में 10 elements है, if you are having 10 elements in array, तो how you will represent the first element? Marks of 0 or marks of 1? Yes. How to represent? Yes. Marks of 0. है ना. For example, if you want to represent a set of 5 numbers, sorry थोड़ा blur है ये इसका फोटो. अगर 5 numbers को represent करना है, दिख रहा है क्या आपको ये second line? For example, if you want to represent a set of 5 numbers, that is 35, 40, 20, 57, 19 by an array. तो अब इसको अपन डिक्लेयर कैसे करेंगे? इसको डिक्लेयर करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है. देख लीजिए उसमें लिखा है int number, सबस्क्रिप्ट है, ब्रैकेट है, इज इक्वल्स टू न्यू int 5. है क्या? थोड़ा क्लियर है क्या? ये दिख रहा है क्या आपको? हाउ टू डिक्लेयर द एरे. अगर आप 5 नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो वो लिख रहा है, देखिए int नंबर स्क्वायर ब्रैकेट्स इज इक्वल्स टू न्यू int 5. दिखा क्या? Yes sir. Yes sir. है ना. So what exactly we are doing? ये for example, if we want to represent a set of 5 numbers, that is 35, 40, 20, 57 and 19 for by an array variable number. array का नाम क्या है? number है. So we may create the variable as number as follows. So array का नाम क्या है बेटा? What is the name of the array? array का नाम है number. Yes or no? What is the name of the array? Number. And what is the type of array? What is the type of array? Integer. Yes. Integer type. Yes. C में हम लोग बस ऐसे ही लिख देते थे कि int number is equals to या फिर number 5 is equals to, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है int number स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू नहीं रहती है. लेफ्ट साइड समझ में आ गया? int is the type of array, number is the name of array and स्क्वायर ब्रैकेट जो भी लेंथ रहेगा array का जो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त डिफाइन करोगे. ठीक है. अब उसके बाद इक्वल्स टू, जैसे ही एरे में इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट का, मतलब सॉरी जावा में क्लासेस का, वैसे ही एरे का भी एलिमेंट क्रिएट करने के लिए एरे को भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं. तो इज इक्वल्स टू न्यू int 5. ठीक है, समझ में आ रहा है? इज इक्वल्स टू न्यू int 5. अगर आपको स्टूडेंट का एरे डिक्लेयर करना है तो आप लिखोगे int स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल्स टू न्यू इंटीजर 100. इससे क्या होगा? स्टूडेंट इंटीजर टाइप का एरे होगा, स्टूडेंट उसका नेम होगा और 100 मेमोरी लोकेशंस रिजर्व होंगे. ठीक है. यस और नो?
यस तो ये लाइन लिखने के बाद एक्चुअली होता क्या है? व्हाट हैपेंस व्हेन यू राइट इंट नंबर इज इक्वल्स टू न्यू इंट 5? ध्यान से देखिए लाइन, एंड द कंप्यूटर रिजर्व्स 5 स्टोरेज लोकेशन एज शोन। दिख रहा है आपको नंबर 0, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और ब्लैंक स्टोरेज लोकेशन दिख रही है क्या मेमोरी की? yes or no students? Yes, sir. So what क्या हुआ, क्या आपने लिखा int number स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल्स टू न्यू int 5। so यहाँ पे क्या हुआ, आपने अभी कोई वैल्यू दिया है क्या एरे को? कोई वैल्यू दिया है क्या? Have you given any value? No. तो एक्चुअली क्या होगा, int 5 मतलब लेंथ पता चल गई आपको एरे की, और नंबर इज द नेम ऑफ द एरे। तो 5 स्टोरेज लोकेशंस विल बी रिजर्व्ड बाय द कंप्यूटर इन मेमोरी। तो उसका नाम रहेगा नंबर 0 है पहली लोकेशन, नंबर 1 है सेकंड, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Now, how to put the values in the array elements? The values to the array elements can be assigned as follows. Number 0 is equals to 35, number 1 is equals to 40, number 2 is equals to 20, number 3 is equals to 57 and number 4 is equals to 19. एक बार आपने ऐसे assign कर दिया, this would cause the array number to store the values as shown. अब पहले देखो number 0 में blank था, number 1 में भी blank था. Now the memory location is showing. Number 0 is 35, number 1 is 40, number 2 is 20, number 3 is 57 and number 4 is 19. दिख रहा है कैसे स्टोर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया कैसे मेमोरी में जगह कैसे रिजर्व होती है? यू हैव टू राइट हाउ यू डिक्लेयर इंट नंबर ब्रैकेट इज इक्वल्स टू न्यू इंट 5। मतलब इंटीजर टाइप का है, उसका नाम है नंबर और 5 लोकेशंस यानी 5 नंबर्स को वो स्टोर करेगा, इसलिए मेमोरी में 5 लोकेशंस आर रिजर्व फॉर दैट। ठीक है, मेमोरी में कितने लोकेशन रिजर्व हो जाएंगे उसके लिए? 5। From 35, number 1 will become 40, number 2 is 57, number 4 is 19 और ये फिर मेमोरी में असाइन हो जाएंगे। ठीक है, यस और नो? Yes. Yes, और जैसा और जैसे सी में सबस्क्रिप्ट एरे के चालू होते थे 0 एलिमेंट्स यानी नंबर 0, तो वैसे ही जावा में भी सबस्क्रिप्ट स्टार्ट विद वैल्यू 0। मतलब अगर 100 एलिमेंट स्टोर है तो सबस्क्रिप्ट का वैल्यू कहां से चालू होगा? 0. 0 से, और कहां पे एंड होगा? 99. 99 पे, यानी फॉर द 100th एलिमेंट द सबस्क्रिप्ट विल बी नंबर यानी सैलरी 99। यस और नो? Yes, sir. Yes or हाँ। Now next we will see that how you can declare also। ऐसा भी कर सकते हैं ना, declare नहीं आप use कर सकते हो arrays को। तो क्या बोल रहा है? These elements may be used in programs। These elements जो अपन ने अभी store करे हैं वो हम प्रोग्राम में भी use कर सकते हैं, just like any other Java variable। जैसे ही Java की, जैसे आपको x is equals to x plus 1 करना है तो x का वैल्यू 1 है, तो अपन ने उसको इंक्रीमेंट करना है तो वापस से उस वेरिएबल को यूज किया हमने, x is equals to x plus 1 या z is equals to x plus y। x और y का वैल्यू is 1 and 2। now z is equals to x plus y। so what we are doing is we are using the variables in our program। ये करते हैं हम लोग, yes or no? Yes, sir. Yes or no? Yes, so same जावा के जो वेरिएबल्स हमने स्टोर किए हैं उनके लिए अभी वेरिएबल्स क्या हो गए? नंबर 0, नंबर 1, नंबर 2। तो इसको भी वैसे ही यूज कर सकते हैं जैसे एक्स वाई जेड को यूज करते हैं। एग्जांपल ये है आपके सामने, देख लीजिए। उसने क्या लिखा? ए नंबर इज इक्वल्स टू नंबर 0 प्लस 10। तो ए नंबर इज इक्वल्स टू नंबर 0 प्लस 10। तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स नंबर 0 प्लस 10 का? What is the value of number 0? What is the value of number 0? 35 plus 10, 45. Yes, 45. so what will become 45 आंसर आ जाएगा। Now उसने लिखा number 4 is equals to number 0 plus number 2. So what is your number 4? नंबर 4 में क्या वैल्यू स्टोर होगी अभी? नंबर 0 प्लस नंबर 2। तो नंबर 0 का क्या वैल्यू है? 35। नंबर 2 का क्या वैल्यू है? 20। तो न्यू वैल्यू जो स्टोर होगी नंबर 4 में अभी कितनी है? 19 है। यस और नो? अभी कितनी है? Yes, न्यू वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी? नंबर 0 का वैल्यू है 35, नंबर 2 का वैल्यू है 30, तो 55 नाउ विल बी स्टोर। यस और नो?
Yes, yes, sir. अपडेट हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। नाउ नंबर 2 इज इक्वल्स टू x5 प्लस y10। तो x ऑफ 5 का जो भी वैल्यू होगा और y ऑफ 10 का जो भी वैल्यू होगा वो नंबर 2 में हो जाएगा। अब वैल्यू 6 इज इक्वल्स टू नंबर i इंटू 3। वैल्यू 6 इज इक्वल्स टू नंबर i इंटू 3। मुझे बताइए नंबर i बोले तो क्या होगा? यस, वैल्यू 6 इज इक्वल्स टू नंबर i इंटू 3। ये कहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग ऐसा स्टेटमेंट? कोई बता सकता है वेयर वी कैन यूज सच स्टेटमेंट्स? आपने पढ़ा है? Imaginary number. नो, नॉट इमेजिनरी। कहाँ पे यूज कर सकते हैं? क्या आपने लूप्स पढ़ा है? while Yes, loop, sir. do while loop। तो अगर मैं बोलता हूँ for I equals to 0, I less than equals to 5, I plus plus, तो I का वैल्यू पहले 0 आएगा, तो नंबर 0 इंटू 3 क्या होगा? नंबर 0 है 35, 35 इंटू 3 हो जाएगा 105। फिर I का वैल्यू फिर कंपेयर होगा कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, यस, तो फिर नंबर ऑफ 1। समझ में आ रहा है ना? लूप्स में ऐसे चीज को यूज करते थे हम लोग, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे भी आप आपके उसको स्टोर कर सकते हो। तो ये तो हमने देख लिया भाई कि बेसिकली क्या क्या हो सकता है, ओवरव्यू देख लिया हमने जावा के एरेस में। नाउ अब लोग उसको एक वन बाय वन देखेंगे। नाउ हाउ टू क्रिएट द एरे, हाउ टू डिक्लेयर इट, हाउ टू क्रिएट मेमोरी लोकेशन, हाउ टू पुट वैल्यूज, ठीक है। तो समझा है कि आपको ओवरव्यू कि हम लोग कैसे उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, इंट नंबर स्क्वायर इज इक्वल्स टू न्यू इंट 5, फिर उसको वैल्यूज कैसे प्रोवाइड करते हैं और उसको कहाँ हम लोग एज अ बेसिक वेरिएबल्स XYZ यहाँ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यस और नो? शुड आई प्रोसीड स्टूडेंट्स? Yes, sir. Now we will study how to create the arrays. So how to create the arrays, देखियो क्या बोलता है, like any other variables, arrays must be declared and created in the computer memory before they are used. मुझे एक बात बताइए, अभी तक जितने भी वेरिएबल्स हम लोग यूज कर सकते थे, int x, तो पहले अपन x को डिक्लेयर करते हैं, यस, पहले उसको डिक्लेयर करते हैं, उसका टाइप क्या है, उसको वैल्यू प्रोवाइड कर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ऐसा कोई वेरिएबल, ऐसा कहीं पे कोई वेरिएबल है क्या जिसको अपन ने डिक्लेयर किया बट उसको इनिशियलाइज नहीं किया पर तो भी यूज होता है वो? हाँ, ऐसा कोई वेरिएबल जिसको अपन ने डिक्लेयर किया बट इनिशियलाइज नहीं किया वैल्यू, लेकिन वो यूज हो जाता है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या कभी? वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया और वो यूज हो रहा, तो मुझे बताइए, मैं एम आई राइट जो मैं बोल रहा हूँ वो ट्रू है या फॉल्स है? कि हमने ऐसे भी वेरिएबल्स यूज करे हैं which are declared but they are not being initialized but they are used in the program. So is it whatever the statement is वो मेरा ट्रू है या फॉल्स है? Yes, anyone? अरे गलत रहा, ट्रू है, यूज किए हैं, कहाँ पे किए? यस, कहाँ यूज करे बता दीजिए ट्रू का। अरे कोई तो बताओ यार, गलत भी रहा तो चलेगा, बताओ। सॉरी, स्टैटिक नहीं, सॉरी, और कोई? यस, राकेश बताइए। सम्यक, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ओह वेरी गुड, क्या नाम है मैडम आपका? वेरी गुड वेरी गुड। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को जब कॉल करते हैं और वैल्यूज को इनिशियलाइज नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट अपन ने बोला था इंटीजर, फ्लोट को 0 0, रेफरेंस को नल, बुलियन को फॉल्स, यस और नो? अरे याद रखिए ना, ये बस ऐसे ही क्वेश्चन, बस ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले आपको एग्जाम में, ठीक है। ट्रू और फॉल्स अगर बोल दिया आपने, सो व्हाट इफ, is there any concept in Java where we can declare a variable but we are not initializing it and still the program is running successfully? तब आपको पता रहना चाहिए वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर ऐसा होता है, बिकॉज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर देता है सबको 0 0 0, नल और फॉल्स, यस और नो? Yes. So now coming back to our topic, creating an array. So before using an array या कोई भी variables, you need to declare it, you need to assign a value and then you can use it. So ठीक है, so creation of an array involves 3 steps. So to create an array there are 3 steps. सबसे लास्ट में देख लीजिए, creation of an array involves
3 steps. So what are those 3 steps? First you need to declare the array. ठीक है, first we will declare the array, then we will create memory locations. Memory location ये ऊपर देखा है हमने. Just a minute students, I have to take this call. Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So while creating the array, first we will declare the array, then we will creating memory location जो automatically जैसे अपन ने declare किया memory locations create हो जाएंगी, and then we will put the values into the memory locations. यही देखा है ना अपन ने ऊपर, int number is equals to new int 5. ये क्या किया, declare किया array को. Second देखा कि भाई वो memory locations automatically 5, 10 रहती तो 10, 100 रहती तो 100 memory locations continuous है. Continuous मतलब what do you mean by contiguous memory locations? Continuous memory location मतलब एक के बाद एक आजू के बाजू वाली memory locations रिजर्व होगी, और फिर क्या करना है अपने को वैल्यू पुट करना है उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशंस पे. यस और नो? यस. sir. नाउ वी विल सी डिक्लेरेशन ऑफ एन array. पहला देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ array. arrays in java may be declared in 2 forms. 2 फॉर्म में कर सकते हैं. फॉर्म 1 में क्या लिखा है उसने, टाइप, array name और स्क्वायर ब्रैकेट्स और सेमीकोलन. ठीक है, टाइप मतलब इंट, array name जैसा स्टूडेंट तो इंट स्टूडेंट ब्रैकेट और सेमीकोलन. ठीक है, ये हो गया पहला टाइप. समझा है क्या स्टूडेंट्स? Yes, sir. दूसरा फॉर्म क्या है, वो जो एरे नेम है उसको बाद में लिखने का, और अपना जो टाइप है उसको टाइप के पहले वो लिख देने का, ब्रैकेट. देख रहे आपको, टाइप स्क्वायर ब्रैकेट्स एरे नेम सेमीकोलन. मतलब टाइप लिखा, उसमें डाला 100 स्क्वायर ब्रैकेट में और स्टूडेंट, मतलब 100 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है. एग्जाम्पल देख लीजिए, इंट नंबर दिख रहा है आपको, एग्जाम्पल दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, इंट नंबर स्क्वायर ब्रैकेट्स, फ्लोट एवरेज, इंट फिर पहले ब्रैकेट है काउंटर एंड फ्लोट ब्रैकेट्स मार्क्स. यस, यस और नो? Yes, sir. Yes. अब एक और चीज है, याद से पढ़ लीजिए लास्ट लाइन जो लिखी है. Remember, we do not enter the size of the arrays in the declaration. ठीक है, we do not enter the size of the arrays in the declaration. ये क्या किया अपन ने, डिक्लेरेशन किया. yes or no? अरे yes or no? So यहाँ पे याद रखिए, अपने को सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट डालना है. we do not have to enter the size of the arrays in the declaration. okay, is it okay? Yes, sir. ये हो गया पहला, डिक्लेरेशन ऑफ arrays. ठीक है, समझ में आ गया डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशन में क्या क्या पता चलेगा अपने को, टाइप ऑफ द एरे एंड नेम ऑफ द एरे. ठीक है, Yes, sir. नाउ वी विल क्रिएट एन एरे. दिख रहा है सेकंड, क्रिएटिंग एन एरे. तो क्रिएशन ऑफ एरेज में क्या है, आफ्टर डिक्लेयरिंग एन एरे वी नीड टू क्रिएट इट इन द मेमोरी. ठीक है, एक बार एरे को आपने डिक्लेयर कर दिया तो ये तो सिर्फ प्रोग्राम में डिक्लेयर किया, इससे मेमोरी लोकेशन की वैल्यू रिजर्व होंगी क्या? No, sir. नहीं, क्योंकि पता ही नहीं ना, पता ही नहीं अपने को साइज क्या है तो कितनी मेमोरी लोकेशन. तो अब अपने को क्रिएट करना पड़ेगा. तो क्रिएट करना पड़ेगा, तो देख लीजिए अच्छे से, आफ्टर डिक्लेयरिंग एन एरे वी नीड टू क्रिएट इट इन द मेमोरी. जावा अलाउज अस टू क्रिएट arrays using new operator only. ये लास्ट में न्यू है. ठीक है, जावा अलाउज अस टू क्रिएट arrays using new operator only as shown below. मतलब आपको अगर array को क्रिएट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा न्यू ऑपरेटर. तो इससे एक चीज पता चल रहा है क्या, कि जावा सी प्रोग्रामिंग में array तो एक वेरिएबल था. यस और नो? Yes, sir. array एक वेरिएबल था, बट सी जावा प्रोग्रामिंग में array is treated as a class और ऑब्जेक्ट. एक क्लास या ऑब्जेक्ट के तौर पे उसको वो किया जा रहा है. array एक क्लास है, और मुझे बताइए कोई भी क्लास का जब आपको इंस्टेंस क्रिएट करना है तो आप कौन सा कीवर्ड यूज करते थे? न्यू. तो यहाँ पे जब अपने को array को क्रिएट करना है तो अपन क्या कर रहे हैं, जब भी कोई array को क्रिएट करना है तो जावा अलाउज अस टू क्रिएट arrays यूजिंग न्यू ऑपरेटर ओनली. तो देखिए सिंटैक्स क्या है उसका, array name is equals to new टाइप और साइज. ठीक है, यस और नो? Yes, sir. तो मुझे बताइए, पहले जब डिक्लेयर किया तो डिक्लेयर करा वाला ऊपर है, देखो टाइप और array name चाहिए और स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए. यस और नो?
जब आपको क्रिएट करना है एरे को, तो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे न्यू ऑपरेटर चाहिए और टाइप चाहिए और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज सही चाहिए, ठीक है? यस और नो? Yes, sir. यस सर। अब एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल ऊपर देखिए, इंट नंबर स्क्वायर ब्रैकेट अपन ने डिक्लेयर किया था, अब उसको क्रिएट करें। देखो नंबर बोले तो एरे का नाम है, इज इक्वल्स टू न्यू इंट 5। उसके बाद में अपन ने लिखा था फ्लोट एवरेज स्क्वायर ब्रैकेट, तो उसके वो डिक्लेरेशन था। अब नीचे क्रिएट कैसे हो रहा है? एवरेज यानी एरे का नाम इज इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड फ्लोट इज द टाइप ऑफ द एरे एंड ब्रैकेट में साइज 10 इज द साइज ऑफ द एरे। समझा है? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So declaration of arrays, creation of arrays. लेकिन ये जो अपन ने लिखा है, इससे क्या होगा? These lines create necessary memory location for the arrays number and average and designate them as int and float respectively. जैसे ही आपने लिखा number is equals to new int 5 and average is equals to new float 10, मुझे एक चीज बताइए, अब अगली बार अगर मैं कभी भी आपको ऐसा लिखता हूँ कि एवरेज इज इक्वल्स टू न्यू फ्लोट और स्क्वायर ब्रैकेट में 10, तो आप लोग बता सकते हैं हम लोग एरे का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं? यस और नो? Yes, sir. नाम क्या है? अगर मैं पूछूंगा आपसे एरे का, व्हाट इज द नेम ऑफ द एरे, सो यू विल से एवरेज। यस और नो? Yes, Yes, अरे, sir. अगर नंबर इज इक्वल्स टू न्यू इंट 5 है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द एरे Number. एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ द एरे Integer. and what is the and what is the size of the array? 5. 5. तो जैसे ही आप ये डिक्लेयर करते हो नंबर इज इक्वल्स टू न्यू इंट 5 और एवरेज इज इक्वल्स टू न्यू फ्लोट 10, these lines create memory location for the arrays number and average and designate them as int and float respectively. Now the variable number refers to an array of 5 integers. तो अब जो वेरिएबल है नंबर, आपने लिखा ना नंबर इज इक्वल्स टू न्यू इंट 5, यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जब अपन लिखते थे एनिमल ए इज इक्वल्स टू न्यू एनिमल, तो एनिमल ए इज इक्वल्स टू न्यू एनिमल का मतलब होता था कि ए जो है वो पॉइंटर रेफरेंस बन गया और वो किसको पॉइंट कर रहा है? न्यू एनिमल वाले ऑब्जेक्ट को। यस और नो? Yes, sir. तो जैसे आप लिखते हो नंबर इज इक्वल्स टू न्यू इंट 5, तो नंबर जो एरे है अब वो पॉइंट करेगा, किसको पॉइंट करेगा? टू एन एरे ऑफ 5 इंटीजर्स। वहां पे एक सिंगल ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता था, यहाँ पे एक जगह पॉइंट करेगा जहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट स्टोर है। 5, यस और नो? 5 इंटीजर्स आर स्टोर, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. वहां पे वो ऑब्जेक्ट के पास सिंगल वैल्यू रहती थी, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के पास जिसको वो पॉइंट करा उसके पास कितनी वैल्यूज है? 5. 5. क्योंकि एरे इन जावा इज अ क्लास और एन ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट अ सिंपल वेरिएबल जो हम लोग सी में यूज करते थे, ठीक है? यस और नो? Yes, sir. तो अब इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू कंबाइन द टू स्टेप्स। अब ये जो डिक्लेरेशन और क्रिएशन है, इसके लिए अलग अलग सिंटेक्स दिखा आपने को, यस और नो? अरे यस और नो? Yes, sir. इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू कंबाइन द टू स्टेप्स, यानी डिक्लेरेशन और क्रिएशन एक ही स्टेप में, जो अपन ने पिछले स्लाइड में देखा था। तो ये देख लीजिए, इंट नंबर स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल्स टू न्यू इंट 5, और हमेशा अपन ऐसे ही लिखेंगे। हाँ, अपन डिक्लेयर और क्रिएट अलग अलग नहीं करेंगे, अपन स्मार्ट वे में चलेंगे, ठीक है? सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट इंट नंबर इज इक्वल्स टू न्यू इंट 5। क्या हुआ? ये लाइन का मतलब क्या हुआ? डिक्लेयर भी हो गया एरे और इनिशियलाइज भी हो, क्रिएट भी हो गया। यस और नो? इनिशियलाइज नहीं होता, क्रिएट हुआ। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या कर रहा है? इक्वल्स टू का डिक्लेरेशन ऑफ एरे। यस और नो? लेफ्ट हैंड साइड क्या कर रहा है? Declaration. Yes, it is telling us the name of the array and the type of the array. और right hand side क्या कर रहा है? It is creating the object of the array. New object, new keywords object create हो रहा है of type array का integer और location 5. ठीक है? लेकिन अभी अपन ने क्या किया? int number is equals to new int 5. अभी अपन ने कोई वैल्यू दिया है क्या array को? No, sir. No, तो no. देखिए यहाँ, तो पहले अगर फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट है, अब हम लोग फिगर में देख रहे हैं, अगर ये स्टेटमेंट है, सॉरी, अगर ये स्टेटमेंट है इंट नंबर स्क्वायर ब्रैकेट
और सेमीकोलन, सिर्फ इतना लिखा है। तो रिजल्ट में क्या आएगा देखो, नंबर विल बी द रेफरेंस। इंट कहाँ कहीं पॉइंट कर रहा है क्या? इंट नंबर नो सर। पर आपने लिख दिया, तो नंबर इज द नेम ऑफ द एरे, टाइप इंटीजर, लेकिन कहीं पॉइंट कर रहा है क्या? वो क्यों कहाँ पॉइंट करेगा? क्योंकि अभी तक आपने साइज डिक्लेयर नहीं किया है एरे का, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कौन सी मेमोरी लोकेशन पे कितने स्लॉट्स को मेरे को पॉइंट करना है। लेकिन जैसे ही आप लिखोगे नंबर इज इक्वल्स टू न्यू इंट 5, तो वो नंबर विल पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट, यानी पहली लोकेशन ऑफ नंबर 0, फिर जाएगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नीचे वाला डायग्राम ही देख रहे हैं ना सब लोग? Yes, sir. यस और नो? तो ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। Yes. Yes, sir. इंट नंबर का रिजल्ट क्या आएगा? दैट नंबर रेफरेंस will point at nowhere, लेकिन as soon as you write number is equals to new integer of 5, so that will point, that number reference will point to the object which is created using the new keyword and having 5 elements stored in it one by one in the memory. Yes or no? यस सर। Yeah. So समझ में आ Yes, गया sir. declaration of array and creation of arrays? Yes, sir. यस सर। Can we declare and create arrays in the same line? Yes, sir. यस सर। है ना? Yes. Why we are using the new keyword? Why we are using the new keyword? Yes. Anyone? Why we are using the new keyword? Point at that array. Why we are using new keyword? Why we use new keyword in general? To create instance of a class. Object बनाने के लिए class का. तो array is treated as a class. तो उस array का object बनाने के लिए new keyword. Because array is not treated as a variable in Java. Array is treated as a class or object. Okay? Yes, sir. So now ठीक है, तो अभी डिक्लेरेशन हो गया, क्रिएशन हो गया। नाउ वी विल सी हाउ टू इनिशियलाइज। अब इनिशियलाइज आपको पता है कैसे इनिशियलाइज करते हैं हम लोग? कैसे करते हैं इनिशियलाइज? एरे नेम देख लीजिए, दिख रहा है क्या? एरे नेम ब्रैकेट में सबस्क्रिप्ट इज इक्वल्स टू वैल्यू और सेमीकोलन, दिख रहा है क्या? हाउ टू इनिशियलाइज एरे क्या है? एरे नेम सबस्क्रिप्ट इज इक्वल्स टू वैल्यू। ये सब आप लिखते हैं क्या? लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो ये फिर मैं बाद में। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, वो जब अपन ने कैट में शेयर किया था वो नोट्स का, वो थोड़े पेजेस आगे पीछे थे, बट वो हो जाएगा कि वापस से शेयर करना है वो आपको? यस सर इट इज ओके, नो नीड टू सर, करना हो जाएगा ना? चल जाएगा ना सर? चल जाएगा। हाँ मैं वही पूछ रहा था, क्योंकि मैंने एक्चुअली वो इमेजेस है। अब आप लोग यहाँ रहते अगर फिजिकली, तो मैं आपको वो दे देता जेरोक्स करने के लिए, ठीक है? नहीं है इसलिए वो क्या किया कि हमने उसको वो पीडीएफ में ही कर लिया, वो इमेजेस को शेयर कर दिया। बट देन स्पेसिफाइड, तो अपन ने डिक्लेयर जब इनिशियलाइज जब अपन ने एरे को क्रिएट किया था, तो अपन ने लिखा था int 5, दैट वाज द साइज ऑफ द एरे। तो सबस्क्रिप्ट कहां तक जाएगा? 1 लेस देन द साइज, तो साइज इज 5, तो 0 से चालू करो तो आप कहां तक जाओगे? 4 तक। यस तो सेकेंड लाइन क्या बोल रहा है? अनलाइक सी में ऐसा होता होगा, जावा प्रोटेक्ट्स एरेज फ्रॉम ओवररन्स एंड अंडररन्स, ट्राइंग टू एक्सेस एन एरे बाउंड इट्स बाउंड्रीज विल जनरेट एन एरर। होता ये था कि सी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नंबर 0, नंबर 1, नंबर 4 और नंबर 5 और 6 में भी वैल्यूज दे देता था वो। यस और नो? सी में याद करो, अगर पता नहीं होगा तो घर जाके एक बार, घर पे हो आप, एक बार पढ़ो उसको कि एरे में अगर एरे का साइज अपन ने 5 डिक्लेयर किया है, सी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 5 इज द एलिमेंट्स, तो वो रीच कर सकते हैं आप नंबर 0 से नंबर 4 तक। यस और नो? यस और नो? यस सर। Yes, sir. लेकिन अगर आप नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 लिखते थे, तो वो अपने को एक गार्बेज वैल्यू या कोई तो भी वैल्यू दे देता था। यस बिना काम की। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। if you are trying to access an array bound, its boundaries will generate an error message। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जितने सबस्क्रिप्ट है, नंबर 0, 1, 2, 3, 4, नंबर 5 लिखा तो वो आपको तुरंत एक एरर मैसेज दे देगा कि आपका बाउंड के बाहर आप जा रहे हैं। ठीक है? ओके? यस सर। Now next is we can also initialize arrays automatically in the same way as the ordinary variables when they are declared actual। अब arrays को declare भी आप कर सकते हो, यानी automatically initialize in the same way जैसे ordinary variables को declare करते हो। अब वो कैसे, वो भी देख लीजिए ध्यान से।
इन्होंने बोला है कि टाइप एरे नेम इज इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ वैल्यूज। टाइप यानी टाइप क्या रहेगा, इंटीजर, एरे नेम रहेगा नंबर एंड लिस्ट ऑफ वैल्यूज। तो देखते हैं एग्जांपल में क्या होता है। देखिए, द एरे इनिशियलाइजर इज अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमास एंड सराउंडेड बाय कर्ली ब्रेसेस। तो जब आप लिस्ट ऑफ वैल्यूज डिक्लेयर करोगे इनिशियलाइज, यानी जब आप एक्चुअली डिक्लेयर कर रहे हो तभी इनिशियलाइज कर रहे हो, तो आपको हर एक एलिमेंट के बाद कॉमा देना पड़ेगा और सारे एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस में रखना पड़ेगा। एंड नोट दैट नो साइज इज गिवन, साइज कुछ भी नहीं, अभी भी नहीं दिया गया रहेगा। ठीक है, आप बोलोगे अरे सर साइज कहाँ है, साइज कुछ भी नहीं दिया रहेगा, साइज बिल्कुल नहीं दिया रहेगा। साइज कब देंगे, जब आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। यस और नो यार? Yes, sir. So now what happens, the compiler allocates enough space for all the elements specified in the list. तो आप बोलोगे सर जब आपने साइज ही नहीं दोगे तो ये जो वेरिएबल्स है, जो एलिमेंट्स है, ये कैसे स्टोर होगे? So the compiler will allocate enough space for all the elements specified in the list. यानी जितने भी एलिमेंट्स है लिस्ट में स्पेसिफाइड, उनके लिए कंपाइलर उतनी जगह तो दे देगा ताकि वो स्टोर हो जाए। यस और नो? तो एग्जांपल इज declaration of an array. Declaration of an array. Int number. What is int? Int of the array. Number is the name of the array. और बाद में brackets is equals to, देखो हमने लिखा 35, 40, 20, 57, 90. Yes or no? Hello? Yes or no? तो एक्चुअली होगा क्या कि एरे का नाम पता चल गया। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एरे का नाम पता चल गया, एरे का टाइप पता चल गया और एरे में कौन से एलिमेंट स्टोर होंगे ये पता चल गया, बट एरे का साइज नहीं पता चला। और साइज कब लोग यूज करेंगे, हम लोग जब लिखेंगे नंबर इज इक्वल्स टू न्यू इंट, और देख लेंगे आप एलिमेंट 5 है तो 5 ही रखोगे ना, आपका है तो 6 रखोगे। यस और नो? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. तो ऐसा भी हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू असाइन एन एरे ऑब्जेक्ट टू अनदर। अब एक एरे, देखिए एरे एलिमेंट नहीं बोल रहे अपन, एरे का पूरा ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। उस एरे के ऑब्जेक्ट के अंदर 5 एलिमेंट है, ठीक है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. So it is also possible to assign एक पूरा एरे ऑब्जेक्ट टू अनदर। एग्जांपल देखिए, पहले अपन ने डिक्लेयर करा ए नाम का एरे ऑफ टाइप इंटीजर, उसके एलिमेंट्स दिया 1 2 3। दिख रहा है आप लोगों को? उसके बाद अपन ने एक और एरे डिक्लेयर करा, दैट इज आल्सो टाइप इंटीजर, नेम इज बी, इंट बी स्क्वायर ब्रैकेट्स सेमीकोलन। अब ए और बी दोनों एरे ऑब्जेक्ट है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अपन ने लिख दिया बी इज इक्वल्स टू ए, मतलब ए के एरे ऑब्जेक्ट के जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो बी को ऑब्जेक्ट को मिल जाएंगे। हो गया। बी के भी क्या वैल्यूज हो गई, 1 2 3, ए में ऑलरेडी 1 2 3 था। Yes, Yes, sir. Yes. this is valid in Java and both the arrays will have the same values। जैसा मैंने आपको बताया 1 2 3 दोनों में values है। Okay, we can also use the arrays, जैसे मैंने आपको जब भी बताया loops में भी यूज करते हैं। loops में भी use to initialize large size arrays। एग्जांपल देखिए, for int I equals to 0, I less than 100 and I plus plus। So if I less than 50, sum of I is equals to 0.0, else sum of I is 1। तो वो क्या कर रहा है कि the total elements कितने चेक करना है अपने को, 100 चेक करना है। I का वैल्यू कितना जा रहा है, I less than 100। yes or no? Yes, sir. है ना? So अब मुझे बताइए, नेक्स्ट लिखा है if I less than 50, तो 100 में से 50 एलिमेंट्स तो आएंगे 1 to 50। yes or no? Yes, sir. तो पहले 50 एलिमेंट का वैल्यू क्या लिखेंगे, 0। The first 50 elements of the array sum are initialized to 0। Sum of I is 0, sum of 0 is 0, sum of 1 is 0, sum of 49 is 0। बट जैसे ही sum of 50 आएगा तो sum of 50 0 रहेगा कि sum of 50 1 रहेगा? 1 रहेगा। 1। क्यों? Because that if condition is getting false, 50 is not less than 50। तो ये sum of 50 will not be 0, else sum of 50 is 1। तो इसका मतलब क्या होगा कि the first 50 elements of the array sum are initialized to 0,
while the remaining are initialized to 1. समझ में आया? 0 to 49 है जो सबस्क्रिप्ट है वो 0 इनिशियलाइज होंगे और 50 to 99 जो है वो 1 इनिशियलाइज होंगे. अब ये मत बोलना कि सर ये लूप भी नहीं समझे. समझा है क्या ये? Yes, sir. समझ गया. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. है ना? We can also write such कि for int x is equals to 0, x less than 10, x plus plus. और लिखा है उसमें average x is equals to float और x लिखा हुआ है. क्या होगा इसमें? This loop initialize the array average to the value 0 to 9. है ना? ये जो array है अपना, this loop initialize the array average. है ना? array का नाम क्या है? average to the value 0.0 to 9.0. तो float का टाइप बता रहा है. तो देखिए क्या होगा, पहले x is equal to 0, x less than 10, तो आएगा एवरेज ऑफ x, मतलब पहले एवरेज ऑफ 0 का वैल्यू आ जाएगा 0, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा 1, तो एवरेज ऑफ 1 का वैल्यू आ जाएगा 1. तो कब तक जाएगा ये? 0.0 से 9.0 तक. 9.0 तक 10 का नहीं होगा. 0.0 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्लोट को यूज किया अपन ने, फ्लोट x. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now we will study array length. ठीक है? array length भी एक concept है. So in Java, all arrays store the allocated size. फिर देख लें हम लोग, ये तो वन डायमेंशनल एरे हो गया. फिर हम लोग देखेंगे 2 डायमेंशनल एरे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स और नेक्स्ट वी विल स्टडी स्ट्रिंग्स. ठीक है? तो ये 2-3 चीज है. Yes, sir. तो ये तो जो 2-3 चीज है ये 1-2 दिन में हो जाएगी और उसके बाद फिर वी विल एंटर सेकंड थर्ड यूनिट का बेसिक. तो मैंने आपको पढ़ा दिया इनहेरिटेंस, मल्टी, ये क्या बोलते हैं उसको, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, एंड देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैकेजेस और इंटरफेस. तो ये जहां तक इतना सोचिए कि 3-3.5 यूनिट आपके हो जाएंगे 10-12 दिसंबर. डोंट वरी, जब भी आपकी एग्जाम रहेगी उसके पहले आपका बहुत सारा हो जाएगा.